Hello students and welcome to Learn with Hema's class. Complete explanation with complete solution is my aim. In my channel I shall be covering the entire syllabus of English subjects from grades 5th to 10th including grammar from A to Z topics, that is entire grammar topics I will be covering in my sessions. So don't miss the chance, subscribe my channel right now to stay tuned with your English subject. Today I shall be doing English first chapter of 10th standard from 10th standard book, that is Where the Mind is Without Fear. It's 1.1 written by Rabindranath Tagore. But before that, as I said that I will be doing up the warming up exercises as well as the workshop. So first let us begin with the warming up exercise and then I shall give you a short intro of the poem. The first question in warming up is pair up with your partner and match the terms with their given meanings. So humanism, the meaning of humanism is E, the rationalistic outlook towards humans rather than a divine or supernatural one. Then next is patriotism. For patriotism you can say quality of being patriotic, vigorous, support for one's country. That is the C option for patriotism. Internationalism is D option, state or process of being international. Liberalism is B option, holding liberal views, and environmentalism is concerned about an action aimed at protecting the environment. So these are the answers for match the column. Second question is poems in English are of different types. Of course you must have seen till 10th standard when you have come over here, you have experienced many kinds of poetries. If I imagine, then there are poetries which tells you about nature, then there are poetries which are song like or a story kind of thing. Last year in 9th standard you have done Tansen, you've learned Tansen. Then there are many stories who are just for fun, poems just for fun. So those kind of thing we call as limericks. 5 lines poem, they are there, limericks. 14-line poems are there, basically songs, they are sonnets. So poems are of different types. There are some humorous poems also. Now we shall describe the poems over here. There are 9 types of poems are given and their description, what kind of poem is called. A long story poem, often mythical, is known as epic. EPIC, epic. A short story poem with a message is known as a ballad. A poem of 14 lines is known as a sonnet. A song-like poem is known as a lyric, LYRIC. A poem with no uniformity or rhyme, rhythm, etc. is called as free verse. Okay, you have the options above, you can see the spellings from there. A poem set in picturesque rustic background is idyll, IDYLL. A sad poem lamenting death of a loved one is elegy. A 5-line short funny poem with rhyme scheme AABBA is limerick, and a poem written just to create humor is humorous. So these are the 9 kinds of poems. There are still many kinds of poem, not only 9, but here you have been asked only these 9 kind. Differentiate. Now Where the Mind is Without Fear, this one of the beautiful poem written by Rabindranath Tagore. Now before that I'll just give you a short introduction of Rabindranath Tagore, which is also written over here also. So Rabindranath Tagore, he was born in the year 1861 and he died in the year 1941. That is, he was born and he died, he lived his entire life during the Britishers' rule. He was the author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. Now Gitanjali is actually a compilation of 157 poems he has written. Gitanjali is a compilation of 157 poems, and it is because of this he has got Nobel Prize in Literature in the year 1913. And this Gitanjali, the collection of the poems are so sensitive, fresh and beautiful that you would love to read them and you would love to like flow in the poem.
खो जाओगे उसमें पूरी तरह से, इस तरह की पोएम्स है उसकी। सो ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, तो ये इंडिया वालों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात थी कि एक पहला इंडियन है जिसको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है, एंड ही वॉज वन सच इंडियन एंड ही हैज़ मेड अस प्राउड बिकॉज ऑफ दैट। ये जो पोएम है उसकी, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये एक पोएम भी उस गीतांजलि का ही एक हिस्सा है। ये पोएम भी गीतांजलि पोएट कॉम्पिलेशन का ही, एक एंथोलॉजी का ही एक हिस्सा है। दिस पोएम इज़ वन ऑफ हिज वास्टली रेड, और ये पोएम बहुत रीड की गई थी एंड डिस्कस्ड पोएम, और बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हुआ है लोगों में इसके ऊपर। इट वॉज ओरिजिनली कंपोज इन बंगाली एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। तो ओरिजिनली तो इन्होंने बंगाली में लिखी थी, क्योंकि ये बंगाल में रहते थे, कोलकाता में उस वक्त, तो बंगाली में ही ज़्यादा करके इनका राइटअप्स वगैरह बंगाली में ही है। द पोएम इज़ फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज़ विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि, तो ये नोबेल प्राइज़ इनको गीतांजलि के लिए ही मिला था। टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम when India was ruled by the British, and in this poem, besides political freedom from the British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India। और इस पोएम में जो पॉलिटिकल फ्रीडम में जो लड़ रहे थे उस वक्त ब्रिटिशर्स से, तो टैगोर जो है इस पोएम में पॉलिटिकल फ्रीडम की मांग तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एक प्रेयर भी है जो गॉड को अपील कर रही है कि इंडिया के लोगों को इन सभी चीज़ों से बचाए, इन सभी चीज़ों से फ्रीडम दिलाए, जैसे कि सोशल है, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, इनसे भी सबसे फ्रीडम दिलाए। मतलब जो यहाँ पे जात पात चल रहा है और जो भी सोशल एविल्स है, ट्रेडिशंस है, एज ओल्ड ट्रेडिशंस जो हार्मफुल है, इन सब से भी छुटकारा दे, तो ये चाह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस पोएम के ज़रिए उन्होंने बताया है। और ये पोएम में एक बहुत ही ख़ास बात है, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जो बोल रहे हैं वो एक ऐसी जगह की स्थापना करना चाहते हैं। ही वांट टू क्रिएट और ही वांट टू बिल्ड और ही वांट टू लेट द गॉड मेक सच अ प्लेस जहाँ पर ये सब कुछ ना हो जो अभी है एट प्रेजेंट सोसाइटी में, जो था उस वक्त जब इन्होंने पोएम लिखी थी, वैसा कुछ ना हो, एंड हमारी सोसाइटी जो है एक बहुत ही बेटर प्लेस बन जाए जीने के लिए। इसीलिए इस पोएम में आप देखोगे सब जगह पे वेयर से शुरू हो रहा है, मोस्ट ऑफ द लाइन्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर। अब वेयर आप जैसे आप एडवर्ब्स करते हो तो वेयर मतलब क्या है, इट डिनोट्स अ प्लेस, इट डिनोट्स अ प्लेस। तो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। तो अभी ये जो चाहते हैं, ये पूरी पोएम है, पहले मैं एक बार पूरी रीड आउट कर देती हूँ, फिर आपको लाइन बाय लाइन बताती हूँ। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father let my country awake। तो इतना ब्यूटीफुल वर्ड्स इन्होंने लिखा है, और ये जो सोच है इनके इसके पीछे की, तो ये इतना ही चाहते हैं कि हम एक ऐसी जगह जाए या एक ऐसी जगह बनाए। गॉड को ये कह रहे हैं कि हमको एक ऐसी जगह लेके चलो जहाँ पर हम बिना डरे रह सके और जहाँ पर हमारा सर ऊंचा रहे। देखो, अगर हम गुलाम हैं किसी के तो हमारा सर कभी भी ऊंचा नहीं होगा, हमारा सर नीचे ही होगा। तो उस वक्त जब इन्होंने पोएम लिखी थी तब हम ब्रिटिशर्स के अंडर में, कॉलोनियल रूल में थे, तो वी वर स्लेव्स। तो स्लेव्स का सर ऊंचा नहीं होता है। तो ये वही चाहते कि हमको एक ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पर हमारा सर जो है ऊंचा रहे, एंड वेयर नॉलेज इज़ फ्री। उस वक्त जब हमारा कंडीशन था इंडिया का, उस वक्त काफ़ी जो है लोग अनएजुकेटेड थे। अनएजुकेटेड होने की वजह से उनको सही गलत नहीं पता चलता था, वो जैसे उनको लोग दबाते थे, सप्रेस करते थे, वो वैसे हो जाते थे। तो ये वही कहना चाहते हैं, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, यानी कि नॉलेज जो है इजीली एक्सेसिबल हो, किसी को कहीं जाना ना पड़े, नॉलेज इजीली उनको मिल जाए। एंड वेयर द वर्ल्ड हैज़, क्योंकि जैसे ही आपको नॉलेज मिलेगा तब आपको सही गलत की पहचान होगी और आप सही दिशा करोगे, आप फाइट करोगे अपने हक के लिए। बिल्कुल ऐसा ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जो दलित समाज हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी कम्युनिटी है, उन लोगों को यही तो किया था कि आप पहले एजुकेट हो, फिर यूनाइट हो और फिर फाइट करो, है ना। यू एजुकेट योर सेल्फ, यू यूनाइट योर सेल्फ एंड देन यू फाइट।
So this is the same thing what Rabindranath Tagore have told so many years back, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ पर जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी सोसाइटी है, वो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स यानी कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, इन सब से बिल्कुल भी उसको कुछ फ़र्क ना पड़ता हो, सब एक समान हो वहाँ पर. तो ऐसे जगह पर हमें जाना है जहाँ पर वर्ल्ड इन टुकड़ों में ना बटा हो, हमारे लोग जो सोसाइटीज़ हैं इन टुकड़ों में ना बटी हो. वेयर वर्ड्स कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और जहाँ पर इंसान एकदम सच्चा, इंसान के अंदर एकदम सच्चाई है, वो सच कहता है, ऑनेस्ट रहता है. सो वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी कि उसमें वो सच्चाई है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, कुछ चीट नहीं करेगा. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, और जहाँ पर सभी लोग बहुत ही मेहनती हो और वो कंटिन्यूसली एफर्ट करते हैं अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए. स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, और बेहतर बनाने के लिए. टायरलेस स्ट्राइविंग मीन्स कंटिन्यूसली वर्किंग हार्ड. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे into the dreary desert sand of dead habit. और ये भी कहना चाहते हैं कि हमारा जो आज का समाज है, उस वक्त जब उन्होंने पोएम लिखा था, ये तब की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से सुपरस्टिशियंस और नैरो माइंडेडनेस से भरा हुआ है, जात पात के चीज़ों में बटा हुआ है. तो ये सब चीज़ें जो हैं दकियानूसी, मैं बोल सकती हूँ इन चीज़ों को, दकियानूसी चीज़ें हैं. डेड हैबिट्स मतलब ओल्ड ट्रेडिशंस या कस्टम्स जो हार्मफुल हो सकते हैं. तो ये सब में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं. और वो जो है दे वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, मतलब अब वो खुद सोच सकते हैं. पीपल आर रेशनल ओवर देयर, पीपल कैन थिंक देमसेल्स व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, लोग खुद सोच सकते हैं. तो ये चीज़ है. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मतलब लोगों के दिमाग पर पर्दा नहीं पड़ा है, एकदम जो सही बात है वो सोच सकते हैं, और गलत है तो बता सकते हैं. जैसे पहले सती था, हस्बैंड के डेथ पर वाइफ मर जाती है, तो ये रीज़न करते हैं कि क्यों मरना है, गॉड ने लाइफ दी है तो तुम उसकी लाइफ क्यों ले रहे हो. देन चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, तो क्यों मारना है चाइल्ड को, वो गर्ल चाइल्ड है, उसको भी उतना ही हक है, गॉड ने उसको लाइफ दिया है, तो हु आर यू टू टेक अवे दैट लाइफ. चाइल्ड मैरिज था, तो वो चाइल्ड मैरिज को भी कि क्यों इतनी जल्दी मैरिजेस करना है. और बहुत सारे ऐसे कस्टम्स थे, जैसे अभी भी हमारे काफ़ी ऐसे कस्टम्स है. बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमको क्रॉस नहीं करना चाहिए, कांच टूट जाए, किसी को छींक आ जाए, तो ऐसे बहुत सारे कस्टम्स हम अभी भी कुछ लोग फॉलो करते हैं. तो ये एक तरह से डेड हैबिट्स है. वी शुड ऑलवेज इंसिस्ट ऑन साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स. बाकी सब अपने अपने मन की बात होती है. वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, वेयर द माइंड मीन्स पीपल, माइंड यहाँ पे यूज़ हुआ है वर्ड पीपल के लिए. वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ पर हमको आप लेके जा रहे हो. लेड फॉरवर्ड बाय दी, आप यानी गॉड, यहाँ पे ऑलमाइटी के लिए दी वर्ड यूज़ किया है. इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और हम एक ऐसी दुनिया में जाएं जहाँ पर हमारा जो थॉट है या एक्शन है हमेशा बेहतर होता जाता है ना. इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जो हमेशा हमारी सोच है या एक्शंस है, जो भी हम काम करते हैं वो बेटर होते जाते हैं. इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, तो ये वही चाहते हैं कि इस हेवन ऑफ फ्रीडम में, जहाँ पर सब आज़ादी हो, जहाँ पर लोग सच बोलते हो, जहाँ पर कोई जात पात नहीं हो, जहाँ पर लोग सही गलत का फैसला कर सके, तो ऐसे हेवन ऑफ फ्रीडम में आप हमारी कंट्री को लेके जाइए, हमारे कंट्री के लोगों को जागरूक कीजिए. तो ये जो पोएम है बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर ने उन सभी सोशल वर्कर्स या फ्रीडम फाइटर्स को मोटिवेट करने के लिए लिखी है कि वो जो अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं फ्रीडम के लिए, वो तो लड़े ही, फ्रीडम के लिए तो लड़ाई लड़े ही, साथ साथ में ये जो सोशल एविल्स है उनसे भी लड़े. तो दिस इज़ बेसिकली द मीनिंग, हिडन मीनिंग बिहाइंड दिस पोएम. तो लेट्स लर्न. यहाँ पे कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं नीचे. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, क्लास, ये तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था. टायरलेस स्ट्राइविंग मीन्स कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल. स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स मतलब एम्स एट अचीविंग अ गोल, मतलब एक हमारा एक एम होता है, हमको कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, तो स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, तो वो परफेक्शन के लिए एम करते हैं ऊपर. डेड हैबिट्स, ओल्ड ट्रेडिशन, रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल. एवर वाइडनिंग, फॉर एवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक,
मतलब हमेशा अपना सोच और एक्शन जो है बेहतर करना है, ब्रॉड करना है। एंड देन हेवन ऑफ फ्रीडम, कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स वाइल रिस्पेक्टिंग दोज ऑफ अदर्स। तो ये हमारे मीनिंग्स तो हमने वैसे भी कर ही लिए थे ऊपर टेक्स्ट में जब किए थे। अब हम आते हैं पूरे इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ। विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल लेट यू नो। जो पहला है, इन योर नोटबुक राइट डाउन लाइन्स। आई होप अब तक तो सबके पास टेक्स्ट बुक्स आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो मैं बता देती हूँ कौन से लाइन्स हैं इसके अंदर। इन योर नोटबुक राइट डाउन लाइन्स फ्रॉम द पोएम एज अ प्रूफ फॉर द फॉलोइंग। तो मतलब यहाँ पे वो मीनिंग्स दिए हैं, लाइन्स मीनिंग्स दिए हुए हैं, और आपको जो है पोएम में से वो लाइन्स चूज़ करनी है कि ये जो मीनिंग है वो कौन सी पोएम का मीनिंग दिया हुआ है, कौन सी लाइन का मीनिंग दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट इज टैगोर विशेस फॉर अ नेशन वेयर पीपल आर ट्रुथफुल। तो वेयर पीपल आर ट्रुथफुल, तो ये देखो यहाँ पे जो है आपकी फिफ्थ लाइन, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। तो ये पॉइंट जो है आपके इस पॉइंट को, ये देखो मैं पोएम और ये क्वेश्चन साथ में रखती हूँ तो हमें मिल जाएगा। टैगोर विशेस फॉर अ नेशन वेयर द पीपल आर ट्रुथफुल, फर्स्ट लाइन के लिए हम फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हैं, फिफ्थ लाइन, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। Then second, the poet would like everyone to work hard to reach their goal and in the long run to reach perfection. तो ये तो हमको दिख रहा है, where tireless striving, ये सिक्स्थ लाइन है, where tireless striving stretches its arms towards perfection. थर्ड क्वेश्चन है, the poet wishes that everyone in his country holds his head high in dignity. ये तो but natural फर्स्ट लाइन ऑफ द poem, where the mind is without fear and the head is held high. ये फर्स्ट लाइन हमारा पोएम का इसका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, द पोएट ड्रीम्स ऑफ अ नेशन वेयर नॉलेज शुड बी फ्री टू ऑल। तो ये सेकेंड लाइन है, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, उसका मतलब ये है। एंड द पोएम इज़ अ प्रेयर, ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें लास्ट लाइन से पता चलता है, इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। क्योंकि माई फादर यहाँ पे वो ऑलमाइटी के लिए वर्ड यूज़ कर रहा है, गॉड के लिए। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, इसके आंसर्स हो गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। अब हम आते हैं हमारे मैच द कॉलम के लिए। रीड द कॉलम्स केयरफुली एंड मैच द एक्सप्रेशंस विद द मीनिंग्स। तो अभी जो मैं है, द हेड इज़ हेल्ड हाई, इसका आप ऑप्शन ले लो सी, अ पर्सन विथ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राउड ऑफ पोजेसिंग इट। देन सेकेंड है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का आप ले लो डी, नैरो माइंडेडनेस। देन थर्ड है नॉलेज इज़ फ्री, नॉलेज इज़ फ्री का आप ले लो ई, एजुकेशन इज़ गिवन टू ऑल। देन फोर्थ है डेप्थ ऑफ ट्रुथ, डेप्थ ऑफ ट्रुथ के लिए आप ले लो जी, क्लियर थिंकिंग। देन फिफ्थ वाला है आपका माइंड इज़ विदाउट फियर, उसका आप ले लो फियरलेस पर्सन। देन सिक्स्थ है, ये फियरलेस पर्सन ए है, हाँ। सिक्स्थ है आपका स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स, स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स मतलब एच पॉइंट यहाँ पे, एम्स एट परफेक्शन। सेवेंथ वन जो है आपका क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न आप ले लो सिंसियरिटी ऑफ हार्ट, सच्चे दिल से जो बोलते हैं ना, सही सही, सिंसियरिटी ऑफ हार्ट। देन एट्थ वन डेड हैबिट्स, डेड हैबिट्स इज़ एफ ऑप्शन आ गया, ड्राइड इनफर्टाइल लैंड ऑफ सैंड्स। एंड जो नाइन्थ वाला है एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, उसका आई लास्ट वाला ही ऑप्शन है, ब्रॉडनिंग द आउटलुक एंड एटीट्यूड। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे इसके आंसर्स। अब हम आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर वर्ड्स। तो अब हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर वर्ड्स में आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द वर्ल्ड ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स। तो इसका आंसर तो हमको पोएम में लाइन से मिल जाता है, द वर्ल्ड इज़ ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स लाइक डिफरेंसेस इन कास्ट, क्रीड, जेंडर, कलर, रिलीजन एंड लैंग्वेज। तो ये हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, हाउ इज़ द वर्ल्ड ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, द वर्ल्ड इज़ ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स लाइक डिफरेंसेस इन कास्ट, क्रीड, जेंडर, कलर, रिलीजन एंड लैंग्वेज। Then second question, explain what is the tireless striving should be for. What the tireless striving should be for. The tireless striving refers to the relentless and tireless hard work. मतलब relentless, continuous and है ना, relentless and tireless hard work that the poet expects this countrymen to put in to achieve perfection. ये पोएट जो हमसे चाहते हैं ना कि हम इतना टायरलेस हार्ड वर्किंग करें ताकि हम परफेक्शन अचीव कर सकें। तो आई विल रिपीट दिस आंसर वंस, tireless striving
refers to the relentless and tireless hard work that the poet expects this countryman to put in to achieve perfection. Okay, third question, where come out from the depth of truth, explain in your own words. तो where come out from the depth of truth, explain in your own words में आप लिख सकते हो words that come out from the depth of truth means words that are sincere and true. People should be truthful and honest. Truthfulness should be the dominant quality of people so that they speak words that come right from their hearts. तो इसमें आप अगर 2-3 लाइन ऐसा भी लिख दोगे, एक्सप्लेन करना है इसके लिए थोड़ा सा बड़ा लिखा है हमने, वेयर कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ट्रूथ. मैं वापस एक बार बोल देती हूँ, वर्ड्स दैट कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ मीन्स वर्ड्स दैट आर सिंसियर एंड ट्रू. पीपल शुड बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट. Truthfulness should be the dominant quality of people so that they speak words that come right from their hearts. Okay, now next question, who is thee in the poem and what does the poet appeal to thee to do? तो thee यहाँ पे कौन है? God. God is referred to as thee in the poem. He wants God to lead the country to a place where religious, social, political and intellectual freedom is experienced in the truest sense so that people can get back their lost dignity and help the country progress. तो ये आंसर हमारा इस तरीके से हम लिख सकते हैं. Then what qualities does the poet wish to inculcate in his countryman? अपने countryman में क्या qualities चाहते हैं? The poet wants to inculcate truthfulness, fearlessness, self-confidence, industriousness, rationality and logical thinking in his countryman. तो ये सारे qualities poet wish करते हैं अपने countryman में. Now write in your notebook your own response and justify where needed. अभी ये justify where needed means ये सारे के सारे ये self response questions हैं. तो पहला क्वेश्चन है, is the poem a prayer for India alone? तो ये प्रेयर इंडिया के लिए अकेले के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है जहाँ पर भी गुलामी है और जहाँ पर भी वैसा वातावरण था जैसा इंडिया में है, ये वह सब जगह के लिए है. सो नो, द पोएम इजंट अ प्रेयर फॉर इंडिया अलोन, इट इज़ अ यूनिवर्सल प्ली दैट होल्ड्स गुड एट ऑल टाइम्स एंड फॉर ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. ये एक यूनिवर्सल प्ली है, यूनिवर्सल रिक्वेस्ट आप बोल सकते हो. वॉट शुड द वर्ड्स वी स्पीक रिफ्लेक्ट? Second question, what should the words we speak reflect? The words we speak should reflect our truthfulness, है ना, हम सच बोल रहे हैं, they should reflect our truthfulness. Then next आपका है, what should people keep on widening and how can it be done? क्या widening करते रहना चाहिए? People should keep on widening their thoughts. This can be done by abandoning all forms of superstitious beliefs and orthodox patterns that come in the way of logical reasoning. Then from what darkness of night should our nation awaken? From what darkness of night should our nation awaken? So our nation should awaken from the darkness of captivity and slavery of a foreign rule, of superstitious beliefs and discrimination of caste, creed and religion, into a heaven of freedom where everyone enjoys social, physical, mental, intellectual freedom. तो ये हमारे आंसर. लास्ट जो क्वेश्चन है, what attributes of Rabindranath Tagore does the poem reflect और prayer reflect? What attributes? रविंद्रनाथ टैगोर के कौन से attributes यानी qualities हैं? The poem reflects a patriotic रविंद्रनाथ टैगोर, इससे हमें पेट्रियोटिक है वो पता चलता है. द पोएम रिफ्लेक्ट्स अ पेट्रियोटिक रविंद्रनाथ टैगोर. ही कम्स अक्रॉस एज अ सपोर्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ लिबर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, पॉलिटिकल, सोशल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल. नेक्स्ट इज, व्हाट इफेक्ट डज द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड वेयर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन? तो रिपीटेशन जो, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था ना, वो वर्ड वेयर में शुरू हो रहे हैं. सो द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड वेयर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन अचीव्स एन आर्टिस्टिक इफेक्ट नोन एज एनाफोरा, ANAPHORA. It emphasizes and lends clarity to the kind of place that Tagore wishes his countrymen to become.
है ना, कैसी जगह बनाना चाहते हैं. दैट टैगोर विशेस हिज कंट्रीमैन टू बिकम देयर बाय इंटेंसिफाइंग द थीम ऑफ द पोएम. तो इस पोएम की थीम को और बढ़ा दिया है इन्होंने. ये हमारा ख़त्म हो गया है यहाँ पर. नाउ कमिंग नेक्स्ट, रीड द पोएम केयरफुली एंड कंप्लीट द टेबल आफ्टर द डिस्कशन इन पेयर्स. वन इज़ डन फॉर यू. माइंड, प्रेजेंट सिचुएशन में माइंड कैसा है और एक्सपेक्टेड आइडियल सिचुएशन में कैसा चाहिए. तो ये प्रेयर में माइंड, प्रेजेंट सिचुएशन में माइंड इज़ फुल ऑफ फियर एंड एक्सपेक्टेड या आइडियल सिचुएशन क्या है, इट शुड बी फियरलेस माइंड. सेकेंड, हेड, हेड अभी लो है, हेल्ड लो, और क्या चाहिए हमको, हेल्ड हाई. नॉलेज, नॉलेज इज नॉट फ्री नाउ, प्रेजेंट सिचुएशन में नॉट फ्री, एक्सपेक्टेड सिचुएशन में फ्री और एक्सेसिबल, ACCESSIBLE, एक्सेसिबल. वर्ड्स, words are here in the present situation are, you can say, shallow or untruthful, SHALLOW, shallow, or you can write untruthful. And expected is come out of a depth of truth, expected is come out of a depth of truth. Then habit, अभी की जो habit है वो dead habit है, और जो expected habit चाहिए that is bright habits. एक्सपेक्टेड हैबिट इज क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, हाँ, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन लिख सकते हो हैबिट में, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन. थॉट एंड एक्शन में अभी जो है प्रेजेंट सिचुएशन नैरो माइंडेड है और एक्सपेक्टेड सिचुएशन इज ब्रॉड माइंडेड. तो ये भी हमारा हो गया. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग योर ओन इंटरप्रिटेशन. तो पहला है हमारा वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. देखो यहाँ पर लिखा है यूजिंग योर ओन इंटरप्रिटेशन. तो मैं जो आंसर दे रही हूँ आपको ज़रूरी नहीं है आपको वही लिखना है, आप आपके हिसाब से भी अगर आपको कुछ सही लगता है तो यू कैन राइट दैट ऑल्सो. सो व्हेन द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हेड ऑन बोर्ड वी एन्जॉय एब्सोल्यूट फ्रीडम, है ना, या कंप्लीट फ्रीडम, या वी एन्जॉय, हाँ, एब्सोल्यूट या कंप्लीट आप लिख सकते हो. और भी अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप उस हिसाब से फ्रीडम के लिए कोई एडजेक्टिव दे सकते हो. When knowledge is free, every citizen enjoys the right to literacy and education. I have written this, literacy and education. We can prevent social injustice. Third one, we can prevent social injustice when we pull down the discriminatory walls of caste, class, religion, etc. Then constant effort and strife leads to constant efforts and strife leads to success, है ना, कंटिन्यूस एफर्ट और स्ट्रगल करते हैं तो हम सक्सेस मिलती है. लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग कैन पुट अ स्टॉप टू सुपरस्टिशंस, है ना, लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग कैन पुट अ स्टॉप टू सुपरस्टिशंस. टैगोर अपील्स टू गॉड टू मेक हिज कंट्री अ हेवन ऑफ फ्रीडम. आप ऐसे लिख सकते हो, अ हेवन ऑफ फ्रीडम, और उटोपियन सोसाइटी भी कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. स्टूडेंट्स शुड कीप देमसेल्व्स अलूफ फ्रॉम. अभी यहाँ पर भी आप आपके चॉइस से भी जो आंसर आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो. जैसे आप अगर पोइटिक वर्ड यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, या आपको खुद को कुछ और पता है तो वो भी यूज़ कर सकते हो. स्टूडेंट शुड कीप देमसेल्व्स अलूफ फ्रॉम डेड हैबिट्स, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है स्टोरी में, पोएम में डेड हैबिट्स भी लिख सकते हो या डॉगमेटिज्म भी लिख सकते हो. सो आई वुड प्रेफर राइट डॉगमेटिज्म. स्टूडेंट शुड कीप देमसेल्व्स अलूफ फ्रॉम डॉगमेटिज्म. डॉगमेटिज्म मतलब जो ऑलरेडी लोग करते आ रहे हैं उसी चीज़ को फॉलो करना, तो वो नहीं करना है, हमको रेशनल बनना है, हमको थिंक करना है. सो व्हेन डैश एवरीवन विल बी लिटरेट. सो व्हेन एक्सेसिबल, व्हेन नॉलेज इज़ फ्री, या लिख सकते हो व्हेन नॉलेज इज़ फ्री, या व्हेन नॉलेज इज़ एक्सेसिबल एवरीवन विल बी लिटरेट. मतलब जब नॉलेज फ्री हो जाएगी या नॉलेज एक्सेसिबल हो जाएगी, ACCESSIBLE, एक्सेसिबल का स्पेलिंग. इट इज़ अ सोशल ड्यूटी ऑफ एवरी स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड टू अप्रूट. हमको क्या अप्रूट करना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजियन, लैंग्वेज फ्रॉम सोसाइटीज. तो इट इज़ आवर सोशल ड्यूटी ऑफ एवरी स्टूडेंट of modern world to uproot discrimination on the basis of caste, creed, race, religion, language, etc. from societies. Student must develop scientific outlook and attitudes. तो students को scientific outlook और attitude develop करना चाहिए. In the world of psychophancy, students must
स्पीक द ट्रूथ। अब आप पूछोगे साइकोफेंसी का मीनिंग क्या है। साइकोफेंसी मतलब हम जब किसी की बहुत ही तारीफ़ करते हैं, उनको बढ़ाते चढ़ाते हैं ताकि हमको उनसे कुछ फ़ायदा मिले या वो हमको प्रेफरेंस दे, यानी किसी की बोलते हैं ना क्या, मुझे तो वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, चापलूसी करना। ओके आ गया, किसी की चापलूसी करना। तो वो ऐसा चापलूसी करके आप फेवर्स गेन करते हो तो दैट इज़ रॉन्ग। तो साइकोफेंसी मीन्स किसी की चापलूसी करना ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो। सो इन द वर्ल्ड ऑफ साइकोफेंसी, ऐसे वर्ल्ड में आज मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे इसी टाइप के कुछ लोग आपको मिलेंगे आसपास में। तो ऐसे टाइम पे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, दे शुड स्पीक द ट्रूथ। यानी खाली किसी की चापलूसी करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए आप झूठ कह दो कि यार जैसा वो कह रहा है वैसा कह दो, तो वैसा नहीं करना चाहिए। ओके तो ये सारी चीज़ें तो हमारी हो गई हैं। नाउ लेट अस फाइंड आउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफॉर फ्रॉम द पोएम। तो एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफॉर, एक तो पहला तो है जो आपका नैरोस, ये है ना, कहाँ गया टेक्स्ट बुक आपका, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। इस ये भी एक मेटाफॉर ही है, बिकॉज नैरो डोमेस्टिक वॉल इज इनडायरेक्टली नथिंग बट द ट्रेडिशंस, रिलीजियंस, the society which is divided into narrow-minded society is divided into religions, caste, creed, it is that only। तो ये भी एक एग्जाम्पल है आपका मेटाफोर का। देन सेकेंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। ये भी आपका एक मेटाफोर का ही एग्जाम्पल है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। वाई रीजन दे सकते हो, इट इज़ अ मेटाफोर एज reason isn't directly compared to a clear stream for a better poetic effect। then दूसरा है मेटाफर आपका into the dreary desert sand of dead habit। तो ये क्यों है आपका into the ये वाला है, लास्ट लाइन है, आई सपोज यस, फोर्थ लास्ट लाइन, into the dreary desert sand of dead habit। ये भी एक मेटाफर ही है, बिकॉज जो डेड हैबिट है दैट इज़ कंपेयर्ड indirectly said to be the old rituals and customs, and these dead habits are compared to the desert sand। so it is a metaphor as dead habit, that is old rituals and customs are indirectly compared to the desert sand। तो ये मेटाफोर्स के हमने यहाँ से निकाले हैं। बट मेटाफोर के अलावा यहाँ पे और भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, लेट अस सी, और भी फिगर्स ऑफ स्पीच है। सो पहला ही जो है आपका, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। तो यहाँ पे देखो हेड, हेल्ड, हाई, एच से शुरू हो रहे तीनों लेटर्स, तो ये आपका एलिट्रेशन हो गया। एज 3 words, हेड, हेल्ड, हाई बिगिन विद द सेम लेटर एच एंड प्रोड्यूस द सेम साउंड फॉर अ बेटर पोएटिक इफेक्ट। ओके, और वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, ये वाला जो सेंटेंस है ये भी आपका एलिट्रेशन है। एज 2 words, वेयर एंड वर्ल्ड, हाँ, स्टार्ट विद द लेटर W, साउंड W, वेयर, वर्ल्ड। नाउ नेक्स्ट है वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, ये भी आपका एलिट्रेशन हो गया, क्योंकि W एलिट्रेशन इज 2 words, वेयर एंड वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर W एंड प्रोड्यूस द सेम साउंड, यू कैन राइट। देन वेयर tireless striving stretches its arm towards perfection, ये आप एलिट्रेशन भी कर सकते हो, स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस है यहाँ पे, ये एस वर्ड है, बट आप इसके अंदर आप अगर होए तो पर्सोनिफिकेशन ज़्यादा बेटर रहेगा। एज स्ट्राइविंग जो है इज़ गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ स्ट्रेचिंग इट्स आर्म, स्ट्राइविंग जो है इट इज़ गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ स्ट्रेचिंग इट्स आर्म टू रीच परफेक्शन फॉर अ बेटर पोएटिक इफेक्ट। देन वेयर द क्लियर स्ट्रीम तो हमने मेटाफर कर ही दिया है, एंड इनटू द ड्रेयरी डेजर्ट सैंड, ये भी मेटाफर है, बट ये साथ में एलिट्रेशन भी है ना, डी, ड्रेयरी डेजर्ट। एंड वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, ये अपोस्ट्रोफे हुआ है, वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी। ना दी इज़ इनएनिमेट, राइट, हम गॉड से बात कर रहे हैं, दी इज़ इनएनिमेट, तो हम गॉड से बात कर रहे हैं। जब हम किसी से इनएनिमेट से या सुपरनेचुरल बीइंग से बात कर रहे हैं तो ये हमारा एपोस्ट्रोफे होता है। सो वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, दैट इज़ एपोस्ट्रोफे। एंड अगेन इनटू द हेवन, into that heaven of freedom my father let my country awake, ये भी आपका apostrophe हुआ है, as a direct address is made to God by the poet for a better poetic effect। और बस ये इतने figures of speech हो गए हैं। अब जो है हमारा लास्ट जो है, ये तो एक पोइट्री बनानी है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपने आप से।
तो वो हम यहाँ नहीं करेंगे। एंड देन रीड द पोएम और आपको अप्रिसिएशन देखो, इस यूनिट के जितने भी पोइट्रीज़ हैं सबके अप्रिसिएशन का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है। एंड जो राइटिंग स्किल है वो भी मैं उसके लिए एक अलग से सेशन बनाऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्टडिंग।